بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ ان کی ایک باندی وہاں آئی اور کہنے لگی، آج آپ کی پھوپھی خدیجہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے شوہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہی حضرت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کی باندی کی یہ بات سنی، چپکے سے وہاں اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا۔ اس پر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وحی آنے کا پورا واقعہ سنایا اور بتایا کہ آپ کو تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ بالکل سچ کہتے ہیں، واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دوستوں، کہتے ہیں کہ آپ کے اس طرح فوراً تصدیق کرنے کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا، اور اس بارے میں دوسری روایت یہ ہے کہ صدیق کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس وقت دیا تھا جب آپ معراج کے سفر سے واپس تشریف لائے تھے۔ مکہ کے مشرکین نے آپ کو جھٹلایا تھا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعے کو سنتے ہی فوری طور پر آپ کی تصدیق کی تھی اور آپ نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا تھا۔ البتہ دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق فوری طور پر کر دی۔ اسلام قبول کرنے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ رکھا، اس لیے کہ اس سے پہلے ان کا نام عبد القعبہ تھا۔ اس لحاظ سے ابوبکر صدیق وہ پہلے آدمی ہیں جن کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کیا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یوں بھی بہت خوبصورت تھے۔ اس مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا لقب عتیق رکھا۔ عتیق کا مطلب ہے خوبصورت، اس کا ایک اور مطلب آزاد بھی ہے۔ یہ لقب دینے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ان کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا، یہ جہنم کی آگ سے آزاد ہیں۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اسلام میں یہ پہلا لقب ہے جو کسی کو ملا۔ یاد رہے کہ قریش میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ آپ بہت خوش اخلاق تھے، قریش کے سرداروں میں سے ایک تھے، شریف، سخی اور دولت مند تھے، روپیہ پیسہ بہت فراخ دلی سے خرچ کرتے تھے۔ ان کی قوم کے لوگ انہیں بہت چاہتے تھے، لوگ ان کی مجلس میں بیٹھنا بہت پسند کرتے تھے۔ اپنے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خواب کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر اور مشہور تھے۔ چنانچہ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس امت میں سب سے بہترین تعبیر بتانے والے عالم ہیں۔ اور یاد رہے کہ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ علیہ خوابوں کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر تھے، اور اس سلسلے میں ان کی کتابیں موجود ہیں۔ اس کتاب میں خوابوں کی حیرت انگیز تعبیریں درج ہیں۔ ان کی بتائی ہوئی تعبیریں بالکل درست ثابت ہوتی رہیں۔ مطلب یہ کہ اس میدان کے ماہر اس بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہتر تعبیر بتانے والے فرما رہے ہیں۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نسب نامہ بیان کرنے میں بھی بہت ماہر تھے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس علم کے سب سے بڑے عالم تھے۔ حضرت جبیر بن مطعم بھی اس علم کے ماہر تھے۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے نسب ناموں کا فن اور علم، اور خاص طور پر قریش کے نسب ناموں کا علم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے حاصل کیا ہے، اس لیے کہ وہ قریش کے نسب ناموں کے سب سے بڑے عالم تھے۔ کہتے ہیں کہ قریش کے لوگوں کو کوئی مشکل پیش آتی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے رابطہ کرتے تھے۔ دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں نے جسے بھی اسلام کی دعوت دی اس نے کچھ نہ کچھ سوچ بچار اور کسی قدر وقفے کے بعد اسلام قبول کیا، سوائے ابوبکر کے۔ وہ بغیر ہچکچاہٹ کے فوراً مسلمان ہو گئے۔ ابوبکر سب سے بہتر رائے دینے والے ہیں۔ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے اپنے معاملات میں ابوبکر سے مشورہ کیا کریں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، خود ہی سوچ لیں کہ جس ہستی کے ساتھ مشورے کا حکم خود رب تعالیٰ دے
उस हस्ती की क्या शान होगी। दोस्तों, ये उसी हुक्म की वजह से था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वज़ीर के दर्जे में थे। आप हर मामले में उनसे मशवरा लिया करते थे। एक हदीस में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मेरी मदद के लिए 4 वज़ीर मुकर्रर फरमाए थे। इनमें से 2 आसमान वालों में से हैं, यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम, और 2 ज़मीन वालों में से एक अबू बकर और दूसरे उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दोस्तों, रिवायात में आता है कि इस्लाम लाने से पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक ख्वाब देखा था। ख्वाब में आपने देखा कि चांद मक्का में उतर आया है और इसका एक एक हिस्सा मक्का के हर घर में दाखिल हो गया है और फिर सारे का सारा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गोद में आ गया। आपने ये ख्वाब एक ईसाई आलिम को सुनाया। उसने इस ख्वाब की ये ताबीर बयान की कि तुम अपने पैगंबर की पैरवी करोगे, जिसका दुनिया इंतज़ार कर रही है और जिसके ज़हूर का वक्त करीब आ गया है, और ये कि तुम उनके पैरोकारों में से सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान होगे। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक आलम ने कहा था, अगर तुम अपना ख्वाब बयान करने में सच्चे हो तो बहुत जल्द तुम्हारे गांव में से एक नबी ज़ाहिर होंगे। तुम उस नबी की ज़िंदगी में उसके वज़ीर बनोगे और उनकी वफ़ात के बाद उनके खलीफा होगे। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि कुछ अरसे बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यमन जाने का इत्तफाक हुआ। यमन में एक बूढ़े आलिम के घर ठहरे। उसने आसमानी किताबें पढ़ रखी थीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखकर उसने कहा, मेरा ख्याल है तुम हरम के रहने वाले हो और मेरा ख्याल है तुम कुरैशी हो और तीमी ख़ानदान से हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब में फरमाया, हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब उसने कहा, मैं तुमसे एक बात और कहता हूँ, तुम ज़रा अपने पेट पर से कपड़ा हटाकर दिखाओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसकी बात सुनकर हैरान हुए और बोले, ऐसा मैं उस वक्त नहीं करूँगा जब तक कि तुम उसकी वजह नहीं बता दोगे। इस पर उसने कहा, मैं अपने मजबूत इल्म की बुनियाद पर कहता हूँ कि हरम के इलाके में एक नबी का ज़हूर होने वाला है। उनकी मदद करने वाला एक नौजवान होगा और एक पुख्ता उम्र वाला होगा। जहाँ तक नौजवान का ताल्लुक है, वो मुश्किलात में कूद जाने वाला होगा। जहाँ तक पुख्ता उम्र के आदमी का ताल्लुक है, वो सफ़ेद रंग का कमज़ोर जिस्म वाला होगा। उसके पेट पर एक बालदार निशान होगा। हरम का रहने वाला तीमी ख़ानदान का होगा। और अब ये ज़रूरी नहीं कि तुम मुझे अपना पेट दिखाओ, क्योंकि बाकी सब अलामतें तुम में मौजूद हैं। उसकी इस बात पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने पेट पर से कपड़ा हटा दिया। वहाँ उनकी नाव के ऊपर स्याह और सफ़ेद बालों वाला निशान मौजूद था। तब वो पुकार उठा, परवरदिगार काबा की कसम, तुम वही हो। प्यारे दोस्तों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, जब मैं यमन में अपनी ख़रीदारी और तजारती काम कर चुका तो रुखसत होने के वक्त उसके पास आया। उस वक्त उसने मुझसे कहा, मेरी तरफ से चंद शेर सुन लो जो मैंने उस नबी की शान में कहे हैं। इस पर मैंने कहा, अच्छी बात है, सुनाओ। तब उसने मुझे वो शेर सुनाए। इसके बाद जब मैं मक्का मौज़मा पहुंचा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत का ऐलान कर चुके थे। फ़ौरन ही मेरे पास कुरैश के बड़े बड़े सरदार आए। उनमें ज़्यादा अहम उक़बा बिन अबी मुआइद, शैबा, अबू जहल और अबू अल बख्तरी थे। उन लोगों ने मुझसे कहा, ए अबू बकर, अबू तालिब के यतीम ने दावा किया है कि वो नबी हैं। अगर आपका इंतज़ार ना होता तो हम उस वक्त तक सब्र ना करते। अब जबकि आप आ गए हैं, उनसे निपटना आप ही का काम है। और ये बात उन्होंने इसलिए कही थी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी दोस्त थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अच्छे अंदाज से उन लोगों को टाल दिया और ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए। मुझे देखकर आपने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, मैं तुम्हारी और तमाम इंसानों की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, इसलिए अल्लाह ताला पर ईमान ले आओ। आपकी बात सुनकर मैंने कहा, आपके पास इस बात का सबूत है? आपने मेरी बात सुनकर इरशाद फरमाया, उस बूढ़े के वो शेर जो उसने आपको सुनाए थे। ये सुनकर मैं हैरान रह गया और बोला, मेरे दोस्त, आपको उनके बारे में किसने बताया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
उस अजीम फरिश्ते ने जो मुझसे पहले भी तमाम नबियों के पास आता रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, अपना हाथ लाइए, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ईमान लाने पर बहुत खुश हुए, मुझे सीने से लगाया, फिर कलमा पढ़कर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से वापस आ गया। प्यारे दोस्तों, कहते हैं मुसलमान होने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो सबसे पहला काम किया वो था इस्लाम की तबलीग। उन्होंने अपने जानने वालों को इस्लाम का पैगाम दिया, उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया। चुनाचे उनकी तबलीग के नतीजे में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हुए। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुसलमान होने की खबर उनके चचा हकम को हुई तो उसने उन्हें पकड़ लिया और कहा, तू अपने बाप दादा का दीन छोड़कर मोहम्मद का दीन कबूल करता है। अल्लाह की कसम, मैं तुझे उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तू उस दीन को नहीं छोड़ेगा। उसकी बात सुनकर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं उस दीन को कभी नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, कहा जाता है कि उनके चचा ने जब उनकी पुख्तगी और साबित कदमी देखी तो उन्हें धुएं में खड़ा करके तकलीफ पहुंचाई। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साबित कदम रहे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत में एक हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में हर नबी का एक रफ़ीक यानी साथी होता है और मेरे साथी वहाँ उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान होंगे। प्यारे दोस्तों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम की तबलीग जारी रखी। आपकी कोशिशों से हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मुसलमान हो गए। उस वक्त उनकी उम्र 8 साल थी। इसी तरह हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कोशिश से मुसलमान हुए। जाहिलियत के ज़माने में उनका नाम अब्दुल काबा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम अब्दुर्रहमान रखा। باشم با تو